Hello everyone, welcome to channel. Let's start organ and organ system. The basic tissue mentioned above organized to form organs, which in turn associate to form organ system in the multicellular organisms. Such an organization is essential for more efficient and better coordinated activities of millions of cells constituting an organism. Each organ in our body is made of one or more type of tissues. For example, our heart consists of all four type of tissues: epithelial, connective, muscular, and neural. We also notice after some careful study that a complexity in organ and organ system displays certain discernible trend. This discernible trend is called evolutionary trend. You will study the detail in class 12th. You are being introduced to morphology and anatomy of three organisms at different evolutionary levels to show their organization and functioning. Morphology refers to the study of form or extremely visible features. In the case of plant or microbes, the term morphology precisely means only this. In case of animals, this refers to the external appearance of the organs or part of the body. The word anatomy conventionally is used for the study of morphology of internal organs in the animal. You will learn the morphology and anatomy of earthworm, cockroach, and stockfish representing invertebrates and vertebrates. This can be your made question, that what type of tissues that heart consists. तो इसमें कह रहे हैं heart consists of all four type of tissue: epithelial, connective, muscular, neural. अब आते हैं अर्थवॉर्म पे। अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। Let's start earthworm. Earthworm is a reddish brown terrestrial invertebrate that inhabits the upper layer of moist soil. Common Indian name of earthworm are Peritima and Lumbricus. Morphology of earthworm. Earthworm have long cylindrical bodies divided into more than 100 short segments which are similar. Metameres around 100 to 120 numbers. Dorsal surface of the body is marked by dark median mid dorsal line, dorsal blood vessel along the longitudinal axis of the body. मतलब कि जो डॉर्सल सरफेस है बॉडी का वो डार्क होता है, मीडियन मिड डॉर्सल लाइन, उसको डॉर्सल ब्लड वेसल कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग होता है। द वेंट्रल सरफेस इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जेनिटल ओपनिंग पोर्स। जो वेंट्रल सरफेस होता है वो डिस्टिंग्विश होता है क्योंकि उनके पास पोर्स होते हैं, फिर हम लोग कह सकते हैं जेनिटल ओपनिंग्स होती हैं। एंटीरियर एंड कंसिस्ट ऑफ माउथ एंड prostomium, a lobe which serve as a covering for the mouth and as a wedge to force open cracks in the soil into which earthworm may crawl. Prostomium is a sensory function.
First body segment is first body segment is called the peristomium, that is buccal segment, which contains the mouth. In a mature worm, segments are 14 to 16 and are covered by a prominent dark band of granular tissue called clitium, clitellum. Thus, the body is divided into three prominent regions: preclitellar, clitellar, and postcliteral segments. Four pair of spermathecal apertures are situated on the ventrolateral sides of the intersegmental grooves, that is fifth to ninth segments. Female genital pores is present in the mid of the 14th segment. Single female genital pore. A pair of male genital pores are present on the ventrolateral sides of the 18th segment. Numerous minute pores called nephridopores open on the surface of the body in each body segment except the first last clitellum. There are rows of S-shaped setae embedded in the epidermal pits or in the middle of the each segment. Setae can be extended or retracted. Their principal role is in locomotion. Let's make notes first. ब्राउन होता है कलर में, टेरेस्ट्रियल होता है, और इनवर्टिब्रेट होता है। राइट। इनका जो कॉमन इंडियन नेम है वो है फेरेटिमा और लुम्ब्रिकस। अब आता है मॉर्फोलॉजी। दे हैव लॉन्ग cylindrical body, body is divided into more than 100 short segments, which is called metameres, which is about 100 to 120 in numbers. Dorsal surface is marked by a dark median mid dorsal line या फिर कह सकते हैं हम लोग डॉर्सल ब्लड वेसल
along a longitudinal axis. फिर आता है वेंट्रल सरफेस। फिर जो वेंट्रल सरफेस होता है, वेंट्रल सरफेस, अर्थवॉर्म के बॉडी का वेंट्रल सरफेस, ये डिस्टिंग्विश होता है, मतलब ये अलग होता है क्योंकि इसके पास जेनिटल ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम लोग पोर्स कहते हैं। जो एंटीरियर एंड होता है, एंटीरियर एंड होता है, उसके पास माउथ होता है और प्रोस्टोमियम होते हैं। प्रोस्टोमियम क्या होते हैं? ये एक लोब होता है जो कि माउथ को कवर करने के काम आता है, या फिर यू कैन एंड एज अ वेज टू फोर्स open cracks in the soil into which earthworm can crawl, right? प्रोस्टियम होता है, वो सेंसरी होता है फंक्शन में। ठीक है, फिर जो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट होता है, उसको हम लोग पेरिस्टोमियम कहते हैं, मतलब बकल सेगमेंट। which contains mouth। मेच्योर अर्थवॉर्म्स में जो सेगमेंट्स होता है, वो कवर्ड होते हैं बाय प्रोमिनेंट डार्क बैंड और ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसको हम लोग कहते हैं क्लाइटेलम। तो अर्थवर्म की बॉडी होती है, वो 3 प्रोमिनेंट रीजन्स में बटी होती है। पहला आता है प्री क्लाइटेलर, दूसरा क्लाइटेलर और तीसरा पोस्ट क्लाइटेलर। 4 pairs of spermatical
apparatus, apparatus are situated on the ventrolateral sides of intersegmental grooves, that is fifth to ninth segment, जो सिंगल फीमेल जेनिटल पोर है वो प्रेजेंट होता है मिड वेंट्रल लाइन ऑफ 14th सेगमेंट। जो मेल जेनिटल पोर होता है वो प्रेजेंट होता है वेंट्रोलेटरल साइड्स ऑफ द 18th सेगमेंट। फिर कह रहे हैं हर बॉडी सेगमेंट में फर्स्ट वाले को छोड़ के आखिरी वाले को छोड़ के और लाइट एलम को छोड़ के रोज होते हैं एस शेप्ड के, एस शेप्ड होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं सेटा। ये एम्बेडेड इन द एपिडर्मल पिट्स of the middle of each segment। जो सेटा होता है ये एक्सट्रैक्टेड और रिट्रैक्टेड दोनों हो सकते हैं। एक्सटेंडेड एंड रिट्रैक्टेड दोनों हो सकते हैं। इनका प्रिंसिपल फंक्शन है, रोल है इनका लोकोमोशन का। ठीक है, अब आगे आते हैं एनाटॉमी पे। जो बॉडी वॉल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं एक्सटर्नली बाय अ थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल। इसके नीचे एपिडर्मिस होता है। दो मसल लेयर्स होते हैं सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, और जो इनर मोस्ट और होता है इनर मोस्ट कोलिमिक एपिथेलियम,
एपिथेलियम होता है वो एक सिंगल लेयर से मिलके बना होता है, पॉलीमर एपिथेलियल सेल्स। और इनके पास सिक्रेटरी ग्लैंड सेल्स होते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो स्ट्रेट ट्यूब होता है एंड रन्स बिटवीन फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी। जो टर्मिनल माउथ होता है वो ओपन होता है बकल कैविटी में। ये 1 to 3 सेगमेंट्स में आते हैं which leads into the muscular pharynx। स्मॉल नैरो ट्यूब जिसको हम लोग ओसोफेगस कहेंगे वो होता है 5 to 7 सेगमेंट्स में, और ये कंटिन्यू करता है मस्कुलर गिजार्ड तक जो कि आता है 8 to 9 सेगमेंट्स में। ये ग्राइंडिंग के काम करता है और डिकेइंग लीव्स को ग्राइंड करने में काम आता है, सॉलिड पार्टिकल्स को ग्राइंड करने में काम आता है। जो स्टमक होता है वो एक्सटेंड करता है 9 to 14 सेगमेंट में। Food of the earthworm is decaying leaves and organic matter mixed with soil। कैल्सीफेरस ग्लैंड जो होता है वो स्टमक में प्रेजेंट होता है। ये न्यूट्रलाइज करता है ह्यूमिक एसिड को जो ह्यूमस में प्रेजेंट होता है। जो इंटेस्टाइन होता है वो 15 सेगमेंट से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू करता है लास्ट सेगमेंट तक। अ पेयर ऑफ शॉर्ट and conical intestinal ceca project from the intestine on the 26th segment. The characteristic feature of the intestine after 26th segment except the last 23rd and 25th in the presence of internal median fold of dorsal wall called typhlosole. This increases the effective area of the absorption in the intestine। ये इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया बढ़ाता है। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो ओपन होता है एक्सटीरियर बाय स्मॉल राउंड अपर्चर जिसको हम लोग कहे हैं एनस। जो इंजेस्टेड ऑर्गेनिक रिच सॉइल होता है वो पास होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने के लिए। जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन के थ्रू और फिर इनका यूटिलाइजेशन होता है। जो फेरेटिमा होते हैं वो इनके पास क्लोज्ड ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है। इनके पास ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, हार्ट होते हैं। जो कि इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो ब्लड कन्फाइंड होता है हार्ट और ब्लड वेसल्स के बीच में। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ब्लड सर्कुलेशन में काम आता है, वन डायरेक्शन में ओनली। कॉन्ट्रैक्शन ब्लड सर्कुलेटिंग इन वन डायरेक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। स्मॉलर ब्लड वेसल सप्लाई द गट nerve cord and the body walls। Blood gland are present in fifth, sixth, fourth, fifth and sixth segment। ये देते हैं ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन। दे प्रोड्यूस ब्लड सेल एंड हीमोग्लोबिन विच डिजॉल्व इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिजॉल्व हो जाता है। जो ब्लड सेल्स होते हैं वो फाइगोसेटिक होते हैं नेचर में। जो अर्थवॉर्म होता है इनके पास कोई ब्रीथिंग के लिए स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं होता है। जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है वो थ्रू मॉइस्ट बॉडी सरफेस होता है ब्लड स्ट्रीम में। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो अकर होता है सेगमेंटली और अरेंज्ड कॉइल ट्यूब्यूल्स जिसको हम लोग कहें नेफ्रिडिया। 3 टाइप के होते हैं नेफ्रिडिया। सेप्टर नेफ्रिडिया जो कि प्रेजेंट होता है द बोथ साइड ऑफ द इंटरसेगमेंटल सेप्टा सेगमेंट 15 टू लास्ट दैट ओपन्स इनटू इंटेस्टाइन। दूसरा होता है इंटरग्यूमेंट्रिस नेफ्रिडिया अटैच टू द लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल of segment 3 to last that open on the body surface। जो pharyngeal nephridia होता है
present as a third pair in fourth, fifth, and sixth segment. These different type of nephridia, these different type of nephridia are basically similar in structure. Nephridia regulate the volume and composition of the body fluid. Nephridium start out as funnel that collects excess fluid from coulombic chamber. The funnel connects with the tubular part of the nephridium, which delivers the waste through a pores to the surface in the body wall into digestive tube. Nervous system is basically represented by ganglia arranged segment-wise on the ventral paired nerve cord. Nerve cord in the anterior region, third and fourth segment, bifurcates laterally encircling the pharynx and joins the cerebral ganglia dorsally to form nerve ring. Cerebral ganglia, along with other nerve in the ring, integrate sensory input as well as command muscular responses of the body. जो सेंसरी सिस्टम होता है, इनके पास आईज नहीं होते हैं, but they possess light and touch sensitivity organ receptor cell to distinguish the light intensity to feel the vibration in the ground. Worms have specialized chemoreceptors, taste receptors कहते हैं इनको, which react to chemical stimuli. These sense organs are located on the anterior part of the worm. Earthworm is hermaphrodite, मतलब bisexual. Testes and ovary are present on the same individual. Two pair of testes present in 10th and 11th segment. Their vasa differentia run up to 18th segment, where they join the prostatic duct. Two pair of accessory glands are present, one pair in each in the 17th and 19th segment. Common prostate and spermatic duct. Vasa differentiation open into exterior by a pair of male genital pores on a ventrolateral side of the 18th segment. चार pair of spermatheca are located into 6 to 9 segment, one pair in each segment. They receive and store spermatozoa during copulation. One pair of ovaries attached at the intersegmental septum of the 12th and 19th segments. Ovarian funnel are present beneath the ovary, which continue the oviduct join together and open on ventral side as a single median female genital pore on the 14th segment. Mutual exchange of sperm occur between two worms during mating. One worm has to find another worm and they mate, juxtaposing opposite gonadal opening, exchanging packet of sperm called spermatophores. Mature sperm and egg cell and nutritive fluid are deposited in the cocoon produced by glands, cells of clitellum. Fertilization and development occur within cocoons, which are deposited in the soil. Ova eggs are fertilized by sperm cell within the cocoon, which then slips off warmth and is deposited in or on the soil. फिर कह रहे हैं cocoon होल्ड करता है वर्म एम्ब्रियोज को और अबाउट 3 वीक्स हर कोकून प्रोड्यूस करता है 2 से 20 तक बेबी वॉर्म्स। एवरेज है 4। जो डेवलपमेंट है अर्थवॉर्म का वो डायरेक्ट होता है, लार्वा फॉर्म नहीं होते हैं। अर्थवॉर्म को हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, क्योंकि दे मेक burrows in the soil and make it porous, which help in respiration and penetration and development of the developing plant roots. The process of increasing fertility of the soil by earthworm is vermicompositing. They are also used in bait
of game fishing. एनाटॉमी, बॉडी वॉल होती है अर्थवर्म की, वो कवर होती है बाय अ थिन नॉन सेल्यूलर क्यूटिकल से, जो कि प्रेजेंट होता है बिलो एपिडर्मिस। दो मसल लेयर्स होते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। और इनर मोस्ट कोलमिक एपिथेलियम होता है। जो एपिडर्मिस होता है वो एक सिंगल लेयर ऑफ कॉलमर एपिथेलियल सेल से मिलके बना होता है, जिनके पास सेक्रेटरी ग्लैंड सेल्स होते हैं। और इस चैप्टर के सारे डायग्राम्स आप लोग प्लीज देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सब कुछ याद करना है आपको। जो एपिडर्मिक जो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये स्ट्रेट ट्यूब होता है, और ये होता है फ्रॉम फर्स्ट सेगमेंट टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है। जो टर्मिनल माउथ होता है वो ओपन होता है बकल कैविटी में, जो कि होता है फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड सेगमेंट, विच लीड्स इनटू मस्कुलर फेरिंग्स। फिर आता है ओसोफेगस। ये स्मॉल नैरो ट्यूब होता है, ये स्मॉल नैरो ट्यूब होता है फ्रॉम 5 to 7 सेगमेंट, और ये कंटिन्यू करता है टू मस्कुलर गिजार्ड, जो कि होता है 8 से 9 सेगमेंट तक। फिर आता है हमारा स्टमक, सॉरी अर्थवर्म का स्टमक। ये होता है फ्रॉम 9 to 14 सेगमेंट। जो फूड होता है अर्थवर्म का वो डिकेइंग लीव्स होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि सॉइल के साथ मिला होता है। फिर आता है कैलिफेरस ग्लैंड, जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है, और ये न्यूट्रलाइज करता है ह्यूमिक एसिड को
जो कि ह्यूमस में प्रेजेंट होता है। फिर आता है इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन होता है वो स्टार्ट होता है 15th सेगमेंट से और जाता है लास्ट सेगमेंट तक। फिर आता है पेयर ऑफ शॉर्ट एंड conical projects into intestine on the 26th segment. Key characteristic feature of intestine after 26th segment, except the last 23rd to 25th segment, is the presence of internal median fold of dorsal wall called typhloid sole. ये इंक्रीज करता है increases effective area for of absorption in intestine. Effective area of absorption intestine में। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल होता है वो ओपन होता है एक्सटीरियर पे बाय स्मॉल apparatus aperture जिसको हम लोग कहते हैं एनस। जो इंजेस्टेड ऑर्गेनिक रिच सॉइल होता है वो पास होता है थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ही पास होता है। थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ये पास होता है। और जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज करते हैं कन्वर्ट करते हैं मतलब। इनके पास क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होता है। इनका ब्लड वस्कुलर सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला आता है ब्लड वेसल
दूसरा आता है कैपिलरी। तीसरा आता है हार्ट। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है। फिर जो ब्लड ग्लैंड्स हैं वो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन को। जो कि डिसॉल्व होते हैं ब्लड प्लाज्मा में। जो ब्लड सेल्स होते हैं ये फाइगोसिटिक होते हैं। फाइगोसिटिक। इनके पास रिस्पिरेटरी के लिए और इनके पास कोई ब्रीथिंग डिवाइस नहीं होता है, मतलब कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है ब्रीथिंग के लिए। ये अपनी रिस्पिरेशन थ्रू स्किन करते हैं। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो सेगमेंटली अरेंज्ड होता है। कॉइल्ड होता है। कॉइल्ड ट्यूब्स होते हैं ये लोग। कॉइल्ड ट्यूब्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नेफ्रीडिया। जो नेफ्रीडिया होता है वो तीन टाइप का होता है। सेप्टन नेफ्रीडिया, इंटीग्यूमेट्री नेफ्रीडिया और फेरिंगियल नेफ्रीडिया। जो सेप्टन नेफ्रीडिया होता है जो सेप्टन नेफ्रीडिया होता है फ्रीडिया होता है, दे आर प्रेजेंट ऑन both the sides of intersegmental
septa of segment septa of segment 15 to the last that opens into intestine. फिर आता है इंटीग्यूमेंट्री सेप्टा, ये अटैच करता है द लाइनिंग ऑफ बॉडी वॉल्स of segment 3 to last that opens on the body surface फिर आता है फेरिंगियल नेफ्रिडिया, it presents as a third paired tuft in the fourth, fifth, and sixth segment that are basically similar in structure. जो नेफ्रिडिया होता है ये रेगुलेट करता है वॉल्यूम और कंपोजिशन किसका, बॉडी फ्लूइड का। ये रेगुलेट करता है बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम और कंपोजिशन को। फिर बात करते हैं नेफ्रिडियम की। तो जो नेफ्रिडियम होता है ये स्टार्ट आउट एज अ फनल जो कि क्या करता है, कलेक्ट्स एक्सेस फ्लूइड कहाँ से, फ्रॉम कोइलोमिक चैम्बर से, राइट। जो फनल है ये कनेक्ट करता है नेफ्रिडियम के ट्यूबुलर पार्ट से, कनेक्ट्स टू द tubular part of the nephridium base to the pores to the surface of the body wall into digestive tube। फिर आते हैं आगे, जो नर्वस सिस्टम होता है ये रिप्रेजेंट होता है थ्रू गैंग्लिया, मतलब गैंग्लिया नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ये अरेंज होता है इनटू सेगमेंट वाइज
On the ventral paired nerve cord, ये जो नर्व कॉर्ड है वो एंटीरियर रीजन में, नर्व कॉर्ड इन द एंटीरियर रीजन, जो कि थर्ड और फोर्थ सेगमेंट bifurcates laterally encircling the pharynx and joins cerebral ganglia. Other nerves in the ring integrates sensory input as well as command muscular response of the body. इनमें आईज नहीं होती हैं, लेकिन ये सेंसिटिव ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि लाइट को फील कर सके। और वॉर्म्स के पास, अर्थवॉर्म के पास और इनके पास स्पेशलाइज्ड कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम लोग टेस्ट रिसेप्टर्स भी कहते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन के ऊपर रिएक्ट करते हैं। और ये लोकेटेड होते हैं कहाँ पे? एट द एंटीरियर पार्ट। जो अर्थवॉर्म होता है ये हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। इनके पास दो पेयर होते हैं टेस्टिस के, जो कि प्रेजेंट होते हैं 10th और 11th सेगमेंट पे। जो वासा डिफरेंशिया होता है
वो होता है 18th सेगमेंट तक। और जहाँ पे ये ज्वाइन कर देते हैं प्रोस्टैटिक डक्ट को, ज्वाइन करते हैं प्रोस्टैटिक डक्ट को। एक्सेसरी ग्लैंड्स के 2 पेयर होते हैं। सेवनटीन्थ और 19th सेगमेंट में, जो कॉमन प्रोस्टेट होता है और स्पर्मेटिक डक्ट होते हैं, जिनको हम लोग वासर डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। ये ओपन होते हैं एक्सटीरियर में बाय अ पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर्स। 18th सेगमेंट में वेंट्रोलेटरल साइड पे। ठीक है। 4 पेयर होते हैं स्पर्माथीका के, ये लोकेटेड होते हैं 6th से 9th सेगमेंट तक। और ये रिसीव और स्टोर करते हैं, रिसीव्स एंड स्टोर्स स्पर्मेटोजोआ। जो ओवरी के पेयर्स होते हैं वो होते हैं 12th और 13th सेगमेंट पे। और ओवरियन जो ओवरियन फनल्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ओवरीज के नीचे, जो कि कंटिन्यू करते हैं ओविडक्ट में और जॉइन टुगेदर एंड ओपन इनटू वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड की तरफ खुलते हैं एज द सिंगल मीडियन फीमेल जेनिटल जो जेनिटल पोर पे, जो कि होता है 14th सेगमेंट।
और इनकी मेटिंग जो होती है वो जक्स्टापोजिंग होती है। जो मेच्योर स्पर्म होते हैं, मेच्योर स्पर्म सेल्स और एग सेल्स एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड वो डिपॉजिट करते हैं ककून्स में, जो कि प्रोड्यूस होता है क्लाइटेलम के ग्लैंड सेल से। क्लाइटेलम के ग्लैंड सेल से जो ककून प्रोड्यूस होता है उसमें ये न्यूट्रिटिव फ्लूइड एक्सेल और स्पर्म सेल जाके वो डिपॉजिट होते हैं। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ककून्स में ही होता है। और जो ओवा मतलब एग फर्टिलाइज होता है स्पर्म सेल से ककून में, which then slips off the wall and is deposited into the soil। जो ककून होता है ये वार्म एम्ब्रियोज को होल्ड करता है अबाउट 3 वीक्स। जो ककून होता है ये 2 से लेकर के 20 बेबी वॉर्म्स को प्रोड्यूस करता है और एवरेज 4 होते हैं ईच ककून में। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है और इनमें लार्वा फॉर्म नहीं होता है। फिर कह रहे हैं प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग fertility of soil by earthworm is vermicompositing। Thanks for watching।